Good morning, students. Today, I welcome you all in my second video from the paper Partial Differential Equation. We will study about the topic formation of equation by the elimination of arbitrary functions. Suppose u and v are two functions of x, y, and z variable which are connected by this relation f of uv, where f is a arbitrary function. In this method, we will study how we can form a partial differential equation by elimination of one arbitrary function. The case of more than one arbitrary function will be discussed separately. Now, by elimination of arbitrary function f from this relation, we will obtain a partial differential equation that will be of first degree in P and Q. Note that by small p we mean curly z by curly x, and by small q we will mean curly z by curly y. These notations are already discussed in my video 1 of the paper partial differential equation. Now, what steps we will follow to eliminate this function f? Step number 1. First of all, we will differentiate equation 1 partially with respect to x. Note that when we differentiate u partially with respect to x, we regard y as a constant and treat z as a dependent variable. Note this process carefully. Now we have to differentiate our expression 1, again not it, f of function of u and v with respect to x. Here u is a function of xyz and v is also a function of xyz. When we are differentiating partially with respect to x, it means y is a constant and z being dependent variable is also function of both x and y. So note how we will proceed. First of all, I differentiate partially f with respect to u. Then we will partially differentiate u with respect to x plus partial differentiation of u with respect to x into a partial differentiation of z with respect to x. Same procedure will repeat on partial differentiation of f with respect to v multiply partial differentiation of v with respect to x plus partial differentiation of v with respect to partial differentiation of z into partial differentiation of z with respect to x. To understand this step in detail, please revise the preliminaries part of my first video again. I will explain it briefly here. यहाँ पर f फंक्शन है u और v का, तो मुझे जब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो पहले f का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट टू करा. अब बात आई u की. u तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है x, y और z. y तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको यहाँ कंसीडर नहीं करा. अब मैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी करूंगी और z भी करूंगी, लेकिन z भी x और y का फंक्शन है तो z का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा. तो देखो u का विद रिस्पेक्ट टू x करा प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू z होगा, इनटू में z का विद रिस्पेक्ट टू x होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ v, अब f फंक्शन है v का भी और हमें f का डेरिवेटिव पार्शियली करना है विद रिस्पेक्ट टू x. जो v है वो भी x, y और z का फंक्शन है, तो मैंने f का करा विद रिस्पेक्ट टू v, अब v का कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. प्लस में
अब y के विद रिस्पेक्ट टू तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y क्या है आपका कांस्टेंट, लेकिन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी करेंगे क्योंकि z भी x और y का फंक्शन है और मल्टीप्लाई में z का विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो मैंने लिखी एक सिंगल टर्म और यहाँ दो टर्म्स आई मल्टीप्लाई में, ऐसा क्यों? अब यहाँ पर u का पार्शियल डेरिवेटिव मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू x और मुझे एक्चुअल में भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना था, इसलिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर फिर से आपका कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया कि u फंक्शन z का भी है और z फंक्शन x का है, और u का अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो u का विद रिस्पेक्ट टू z और z का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहाँ पर अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, करली z बाय करली x को p पुट कर दिया बोथ साइड, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब यही सेम प्रोसेस मैं रिपीट करूंगी बाय डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। क्या डिफरेंस आएगा, बस इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर आपका क्या आ जाएगा y, क्योंकि बाकी x और y का रोल बिल्कुल सेम प्ले हो रहा है। देखो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब f फंक्शन है u का और u फंक्शन है y का, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपका x क्या है, कांस्टेंट, और z जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y दोनों वेरिएबल्स का, तो उसका x पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम मैं वैसे ही कर रही हूँ, f का विद रिस्पेक्ट टू u किया और u का विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, लेकिन प्लस में u का विद रिस्पेक्ट टू z भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका u z का फंक्शन है, जो z आपका y का भी फंक्शन है, इसलिए मल्टीप्लाई में आ गया सेम हेयर। और करली z बाय करली y को मैंने क्या पुट कर दिया, q। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये दो टर्म्स प्लस में इक्वल टू 0 है तो मैंने इसको एक टर्म राइट हैंड साइड पर ले जाके नेगेटिव पार्ट बना दिया। ऐसे दिस प्लस दिस है तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस कर लिया। जो स्टेप मैं इस मेथड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, जब हम एग्जांपल्स करेंगे बिल्कुल एज इट इज सेम स्टेप्स करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें एक्चुअल में फंक्शन f एलिमिनेट करना है, तो जहां जहां आपका f फंक्शन यूज हो रहा है आपको वो टर्म्स कैंसिल करनी है। तो अब देखो जरा ध्यान से कि मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो यहाँ ये आपका पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये वाला आपका पार्ट, तो मैंने लिख दिया डिवाइडिंग 5/4। यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो आपका ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट बच गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, सिंप्लीफिकेशन क्या करी है कि मल्टीप्लाई करके जिन टर्म्स में से p कॉमन आ रहा था वो एक ब्रैकेट में, q जिनमें से कॉमन आ रहा था वो एक ब्रैकेट में, और रिमेनिंग टर्म्स जिनके मल्टीप्लाई में p और q नहीं था वो मैंने राइट साइड पर लिख दी। अब देखो मैंने इस ब्रैकेट पार्ट को नोटेशन दी है कैपिटल P, इस ब्रैकेट पार्ट को नोटेशन दी है कैपिटल Q और इस पार्ट को नोटेशन दी है कैपिटल R। नोट दैट स्मॉल p करली z बाय करली x, स्मॉल q करली z बाय करली y। तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। रिमार्क, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल equation obtained by elimination of arbitrary functions is in general equal to the number of arbitrary functions eliminated। कि अभी आपने एक फंक्शन एलिमिनेट किया तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई। जब हम दो फंक्शंस एलिमिनेट करेंगे तो आपकी दो सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं related to this method. First of all, I am dealing with case of elimination of one function only. Example 1, find a partial differential equation by elimination of the function f from this relation. Now revise the steps involved in our method.
The step one, first of all, we will differentiate partially with respect to x and simplify the expression. Step number two, differentiate partially with respect to y and simplify the expression. In the steps of simplification, always remember to replace curly z by curly x by small p, curly z by curly y by small q. It is not compulsory, but you replace these terms to write the expression in simplified form. अब आपका गिवन फंक्शन था z इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1/x प्लस log ऑफ y. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. अब अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली जो मैंने डिफरेंशिएशन करने की प्रोसेस आपको मेथड में एक्सप्लेन करी थी, वो एग्जैक्ट प्रोसेस मैंने यहाँ अप्लाई नहीं करी. क्यों नहीं करी? क्योंकि वो जनरल मेथड था. यहाँ वहां पर आपको फंक्शन की वैल्यूज गिवन नहीं थी, u और v किस फॉर्म में डिफाइन है. यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फॉर्म है, तो जैसा फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे. अब जरा ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू x. तो z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया करली z बाय करली x. वाई स्क्वायर, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y कांस्टेंट होता है इसलिए 0. 2 मल्टीप्लाई का कांस्टेंट एज इट इज. f का डेरिवेटिव मैंने सिर्फ लिखा f डैश. क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपका z इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. तो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश. अब इनटू में जो अंदर ये फंक्शन है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है. 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, log y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0. अब मैंने ये माइनस 1/x स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड पर लिख दिया, करली z बाय करली x को p से रिप्लेस कर दिया. ये आपका एक्सप्रेशन आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. अब हम निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. अब जरा ध्यान से देखो, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया करली z बाय करली y. देन y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका हो गया 2y. 2 इंटू एफ ऑफ दिस, मैंने क्या लिखा इसको, 2f ऑफ डैश. नेक्स्ट आपका, अब ये जो ब्रैकेट में फंक्शन है, मुझे इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिखना था. तो 1/x का तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. और log y का डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, 1/y. यानी कि ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया है विद रिस्पेक्ट टू y. अब क्या करेंगे आप, ये जो 1/y है, एक तो मैं इसे एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं और सिर्फ आर्बिट्रेरी फंक्शन को एक साइड पर रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड यानी कि अपनी लेफ्ट साइड ले आते हैं. करली z बाय करली y को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, q से. तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई होके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए. अब देखो, ये आपका एक्सप्रेशन था y का और ये आपका एक्सप्रेशन था x का. अब मैं तुम्हें चाह रही हूं कि इन दोनों इक्वेशन से ये फंक्शन f आपका एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए मैंने क्या किया है, f को एक साइड रखा, बाकी जो भी टर्म्स जिनमें फंक्शन f इन्वॉल्व नहीं हो रहा उन्हें दूसरी साइड रख लिया. अब आपकी मर्जी है, सेकंड से चाहे थर्ड को डिवाइड कर दो, चाहे थर्ड से सेकंड को डिवाइड कर दो. तो देखो, जैसे ही मैंने डिवाइड में लिखा, राइट हैंड साइड कैंसिल होके 1 बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है. अब यहाँ भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस इक्वेशन को देख के ये मत समझना ये अलजेब्राइक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ p और q पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y है. अब आपने यहाँ एक फंक्शन को एलिमिनेट करा है, इसलिए ये आपकी ऑर्डर 1 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है. अब दूसरा केस हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अब देखो, ये वाला जो आपको एग्जांपल है काफी आपके गिवन मेथड के फंक्शन से सिमिलर लगेगा. वहां क्या था, f फंक्शन था u और v का.
u और v दोनों ही x y z के फंक्शन थे, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख रही हूँ, f फंक्शन है u v का, u आपका है x प्लस वाई प्लस जेड, v है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले u और v के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि वही सिमिलर फॉर्मूला जो वहां आर्टिकल में था वही मैं यूज करूंगी, तब वहां आप इजिली वैल्यू रिप्लेस कर सको। अब जरा देखो, करली u बाय करली x क्या हो जाएगा 1, करली u बाय करली y 1, करली u बाय करली z 1। सिमिलरली करली v बाय करली x 2x, करली v बाय करली y 2y और करली v बाय करली z माइनस के 2z। अब जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल वही सिमिलर फॉर्मूला जो आपके मेथड में था मैंने वही लिखा। अब मैं वैल्यूज रिप्लेस करती हूँ 4 और 5 से। करली u बाय करली x की वैल्यू 1 है, पुट कर दी। करली u बाय करली z की वैल्यू 1 है, मैंने 1 पुट करा, और ये नोटेशन होती है p की, n की बन गया 1 प्लस p। करली v बाय करली x की वैल्यू कितनी है 2x पुट की, करली v बाय करली z की वैल्यू मैंने माइनस 2z पुट करी, और ये आपका बन गया p। यानी कि ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। फिर मैंने बिल्कुल आर्टिकल की तरह करा, इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पर ले जाकर लिख दिया और इन दोनों में से 2 को कॉमन रख लिया। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, y वाला मैंने वैसे ही फॉर्मूला लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पुट करी, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पर लिखी, और ये आपका इक्वेशन आ गया 7। बिल्कुल मेथड की तरह ही अपनी 6 और 7th इक्वेशन को मैंने डिवाइड करा। आपका जो जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स थे कैंसिल हो गए, -2 कैंसिल हो गया, यानी कि अब ये जो रिजल्टेंट कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आई है, इसमें आपका फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दिया आपने, और यही आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहला स्टेप वही, फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो ये क्या बन गया, करली z बाय करली x। f का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा f डैश। अब इसके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x इंटू वाई बाय जेड, तो ये जो y है मल्टीप्लाई में विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हुए ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लिखा ब्रैकेट से बाहर। अब जब x बाय z का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, तो z भी क्योंकि x का वेरिएबल है, फंक्शन है, तो मैं यहाँ u बाय v मेथड लगाऊंगी। तो देखो v का स्क्वायर, न्यूमरेटर में v एज इट इज, इनटू में u का डेरिवेटिव, u क्या है आपका x, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस का साइन u यानी कि x एज इट इज, v यानी कि z का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करली z बाय करली x। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां करली z बाय करली x है वहां मैंने p रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया आपका। अब सेम प्रोसेस मैं इस पर अप्लाई करूंगी, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y निकालने के लिए। तो अब देखो ध्यान से एक बार पहले हम यही देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, करली z बाय करली y। f ऑफ दिस है तो बिल्कुल वहां भी f डैश दिस लिखेंगे, लेकिन वहां क्या होगा आपका x जो है वो आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो मैंने उसे ब्रैकेट से बाहर लिखा। y बाय z का बिल्कुल वैसे ही मैंने u बाय v से पार्शियल डेरिवेटिव किया, करली z बाय करली y को q से रिप्लेस करा, और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने डिवाइड करा तो आपका फंक्शन वाला पार्ट सेम था, कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल मेथड है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ। ये आपका गिवन फंक्शन है z इज इक्वल टू ई की पावर ax माइनस बी वाई इंटू में फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई। यहाँ आप एक पॉइंट जरूर नोट कीजिए, सिर्फ फंक्शन, यहाँ फंक्शन दो है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक आपका फंक्शन f है, लेकिन आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या होता है जिसकी आपको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता कि ये फंक्शन f कैसे डिफाइन है।
तो आपने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं मानना है। आपको सिर्फ अपना ये सिंपल, ये जो एफ जिसकी डेफिनेशन आपको गिवन नहीं है, ये कैसे डिफाइन है, यही आपका एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो एलिमिनेट करके आपको अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1। चलो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं निकालना। z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, करली z बाय करली x। यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी वाला मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने u का पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल एज इट इज मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है ना, तो ax का डेरिवेटिव हो गया a, by का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, और इनटू में आपका v फंक्शन एज इट इज। प्लस में अब की बार u एज इट इज लिखूंगी और इस f का डेरिवेटिव करूंगी, तो f का तो हो गया f डैश, इनटू में इसका विद रिस्पेक्ट टू x करा तो आपका क्या आ गया, a। बस सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किया, करली z बाय करली x को p पुट करा, कांस्टेंट्स को हमने पहले लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो आपका गिवन फंक्शन है ना, तो इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी, मैंने z पुट कर दी, क्योंकि हम हर स्टेप पर जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व f कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम उन्हें एलिमिनेट करते हुए चलने की कोशिश करनी है। सिमिलरली जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ जब एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया तो आपका माइनस p आया, यहाँ जब किया तो प्लस p आया। सिमिलरली करली z बाय करली y को मैंने q पुट किया, एक्सपोनेंशियल इंटू एफ ऑफ को z पुट करा, और आपकी ये कंडीशन आ गई। अब मैंने पहले आर्टिकल में भी आपको रिपीट किया था कि आपको क्या ध्यान रखना होता है, जब भी आपकी इस टाइप की इक्वेशन हो, फंक्शन वाली टर्म को अगर हो सके तो एक साइड पर रखो और बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे। तो अब देखो मैं सेकंड इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, p, इसको इधर ले आऊं माइनस ए जेड और इक्वल टू में ये वाला एक्सप्रेशन, और थर्ड को क्या लिख सकते हैं, q प्लस में बी जेड और प्लस ये वाला एक्सप्रेशन। तो आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल